فریب صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ سامنے آتا ہے. جہاں وسائل کم اور ان کے حصول کے لیے مقابلہ سخت ہو، پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دھوکے اور فریب سے بھی اجتناب نہیں کیا جاتا. اب لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ تر ایک یہ رائے پائی جاتی ہے کہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور فائدہ بھی زیادہ حاصل ہو جائے. شارٹ کٹس جو ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے شارٹ کٹس اور یہ اپروچ انسانی رشتوں میں بھی شامل ہو چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے بہت سارے رشتوں میں تنازعات کی اور بہت سارے رشتوں میں مسائل پیدا ہونے کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان دھوکہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ وہ ایشو ہے بہت امپورٹنٹ جس پر بات کریں گے. ماہر نفسیات طاہرہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہرہ، بہت بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سب سے پہلے وہی سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رشتے خاص ہوتے ہیں، خالص ہوتے ہیں، خالص جذبات کی بنیاد پہ بنتے ہیں. دھوکہ کیسے آ جاتا ہے درمیان میں؟ کیوں؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ دھوکہ ریلیشن شپ میں چیٹنگ یا دھوکہ سب سے بڑا کرائسس ہے کسی بھی انسان کے لیے، رائٹ؟ تو اٹس اے بگ کرائسس اور اس کو بڑا کمپلیکس ہے. اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں دے دیا دھوکہ. ٹھیک ہے. تو چیٹنگ جو ہے نا وہ ایک وے آف کمیونیکیٹنگ اے نیڈ ہے. میں چیٹنگ کر کے یا فریب دے کے اپنی ایک ضرورت بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں جو میں ویسے نہیں بتا پایا. لیکن بتاتے بھی تو نہیں ہے نا. ہاں جی، چھپاتے ہیں. اب یہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو کلچرلی، اسپیشلی ہمارے کلچر میں، ہمیں ویک ہونا، کمزور ہونا یا کسی کے آگے کھل جانے کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ تم اسٹرانگ رہو. تم ریلیشن شپ میں ہم ماں باپ کو دیکھتے ہیں، باپوں کو یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک فرم سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ گھر آ کے روتے نہیں ہیں. پرابلمس، دکھ تو ان کو بھی ہوتا ہے، پرابلم میں وہ بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ایک اپنے پیاروں کے ساتھ اسٹرانگ رہنے کی جو نیڈ ہے یا جو ایک کلچر بن گیا ہے، دیٹ لیڈس ٹو cheating outside the house sometimes. ٹھیک ہے. Because you are not willing or you are not used to telling your needs in the relationship. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت مرتبہ چیٹنگ تو ہو جاتی ہے، مرد نے یا جس نے بھی دھوکہ دیا وہ دے دیا، لیکن اس پہ پشیمانی بھی اس کو ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت مطلب کھلے عام یہ تسلیم کرتا پھرے گا کہ بھائی میں نے دھوکہ دیا اپنی بیگم کو یا اس طرح سے، اور اس کو پشیمانی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دکھ بھی ہوتا ہے. تو اب ایسے سچویشن میں جب کوئی بھی شخص ہو تو وہ کس طرح سے اس کی ہیلپ کی جائے؟ کیونکہ وہ بھی ٹیکنیکلی خوش ہوتا نہیں ہے، اندر سے وہ بھی اداس ہی ہوگا. ظاہر ہے اس کو زندگی سے جو چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا، اسی لیے وہ یا تو شاید چھپے ڈھکے چھپے راستوں سے کچھ اور غلط کام کر رہا ہے، یا وہ گھر میں آ کے بتاتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس کی کوئی پرابلم ان ایڈریسڈ ہے. بالکل بالکل. تو اس کا کیا کریں؟ اس کا دیکھیں وہی بات ہے، سب سے پہلا اسٹیپ جو آج ہم یہاں بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سائنٹیفکلی کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی دھوکہ یا فریب دیتا ہے، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی مرد حضرات یوزلی ایسے کرتے ہیں. لیکن اگر مرد چیٹ کر رہے ہیں تو وہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ دوسرا جینڈر ہے. مطلب آئی آلویز سے تو پھر وہ لوگ آگے سے مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی مین از چیٹنگ ود انادر وومن، تو وہ دوسرا ہی جینڈر انوالوڈ ہے. تو پہلے تو یہ میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں کہ یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے. ریسرچز یہ ہوئی تھیں کہ مرد کو زیادہ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے یا کیا، نہیں ایسا کچھ نہیں. یہ دونوں جینڈر کر سکتے ہیں. پلس آپ جو بات کر رہی تھیں کہ وہ کیا کیا جائے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو سمجھا جائے. اب اچھا سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں ناظرین کو کہتی چلوں کہ میں اس کو شاید انکریج کر رہی ہوں یا اچھا سمجھ رہی ہوں، لیکن ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ مرد کے پاس یا عورت کے پاس کیا ریزنز تھے. تو نمبر 1. دوسرا ان کا ایک تو پہلے بتایا نیڈز کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. دوسرا ان کا لو سیلف اسٹیم ایشو ہوتا ہے. اچھا، جو چیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں، اگر ہم کافی کیسز میں اگین بڑی ریسرچز ہوئی، میری اپنی پریکٹس میں بھی میں نے دیکھا کہ جو لو سیلف اسٹیم کے لوگ ہوتے ہیں شکار، جن کا اپنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ طاہرہ، آپ کو یہاں روکیں گے. ناظرین جو بات کرنا چاہیں طاہرہ سے اور اس معاملے پر کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ سمجھنا چاہیں، اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیں تو ہمارے اسکرینز پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ کال کر کے طاہرہ سے مخاطب ہو سکتے ہیں. جی طاہرہ. جی، تو لو سیلف کانفیڈنس جب ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ہم اکثر باہر ریلیشن شپس بناتے ہیں یا تو اس باہر کے ریلیشن شپ میں لو سیلف اسٹیم کبھی نہ کبھی سامنے نہیں آ جاتی ہے، بٹ ٹیمپرری بوسٹ ملتا ہے. اچھا، نمبر 2 آپ کو رول پلے کا موقع ملتا ہے، یو نو بٹ یو آر ناٹ. لانگ ٹرم ریلیشن شپس میں کیا ہوتا ہے، اٹس اے ویری ٹرکی تھنگ وین دیر از اے رول. ایک لمبا ریلیشن شپ چل جاتا ہے میاں بیوی کا یا کسی کا بھی، اباؤٹ ایچ ادر ا لاٹ، کیونکہ ہمارے یہاں فوکس بھی بہت ہے نا شفا، ہر بات ایک دوسرے کو بتا دینے کا. دیر از نو مسٹری ان ریلیشن شپس اینی مور ان لانگ ٹرم ریلیشن شپس، رائٹ. حالانکہ میرا خیال ہے 2 لوگوں کے لیے
मिस्ट्री प्लस नोइंग ईच अदर का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। बट हम इतना बहुत कल्चर आ गया ना, सब कुछ पता करना है, आई वांट टू नो यू मोर, आई वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, आई वांट टू बी योर उसमें। अच्छा ये मुझे बताएं, उसमें मामलात कितने ख़राब हो जाते हैं दो लोगों के दरमियान? अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी एक सहेली से जो बात बड़े आराम से कर सकती हूँ, शायद वो मैं अपने मेल पार्टनर से नहीं कर सकती, तो मुझे क्यों ज़रूरी है भाई, हालांकि जिससे उसको नुकसान भी नहीं पहुंच रहा, मेरी कोई बात है, मैं क्यों बताऊं? एग्जैक्टली वो जानना चाहेगा, वो फिर कहेगा तुमने मुझे नहीं बताया। तो भाई अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हुई या उससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा, हमारे रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो अगर मैं नहीं भी बता रही तो लेट इट गो। एग्जैक्टली। और देखिए हम यही बात कहते हैं कि कैन यू डिजायर समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव? नो। So if you have someone completely and you know everything about them, then the desire goes down, और वो फिर अनफॉर्चुनेटली बाहर के रिलेशनशिप्स में। ठीक है, हमारे साथ पहले कॉलर हैं इस्लामाबाद से, साकिब उनका नाम है। साकिब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साकिब, क्या क्वेरी आपकी? हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक। जी मैडम से मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप किसी रिलेशन में आ जाते हो, लाइक मतलब आप मियाँ बीवी के रिलेशन में आ जाते हो, तो अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि अगला पर्सन आपके साथ कितना लॉयल है या कितना फेयर है? जबरदस्त सवाल है। कैसे अंदाजा लगाएं कि अगला बंदा आपके साथ बहुत लॉयल है? पहली बात वैसे तो मेरा ख्याल, मैं अगर यहाँ पे अपनी नाक़िस, डेडिकेशन, उस इंसान की डेडिकेशन होगी आप लोगों की तरफ, जो भी आपके साथ लॉयल होगा, उसको आपका हर दुख हर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा नजर आने लग जाएगा। अच्छा कुछ मामलात में ये उल्टा भी हो जाता है, खवातीन कहती है जब मर्द बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, तोहफे लाने लग जाए, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इनको मैं ये बताना चाहूंगी कि एज सच कोई कंफर्म्ड मार्कर्स नहीं है, कंफर्म्ड कोई टेस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ये जेनेटिक है, मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं है। अगेन कुछ रिसर्चेस हुई कि जी ये जेनेटिक है। अच्छा अगर उनकी, जैसे मैंने अभी ये रीजन बताए, अगर ये देखते हैं कि उनकी लो सेल्फ एस्टीम है, तो मेरा ख्याल है कि रादर देन हम डरते रहें और उनको बांधते रहें, क्यों ना हम उनकी सेल्फ एस्टीम पे काम करें अपने पार्टनर की। देखें साकिब साहब को यही कहूँगी, रिलेशनशिप्स आर हार्ड वर्क, यू कैन ऑलवेज लेट देम फ्लरिश इन देयर ओन वे, यू नो। हमारे यहाँ क्या होता है, जब रिलेशनशिप होता है तो हम उसको अपने साथ बांधने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो छुड़ाने में पर्सनल स्पेस भी इन्वेट कर देते हैं। हाँ, ये वजह है। हाँ, अ गुड रिलेशनशिप इज़ फ्लूइड। एक अच्छा रिलेशनशिप पानी की तरह, एक लिक्विड की तरह होता है, जहाँ कभी आप इकट्ठे हो गए ऐसे और कभी जब ज़रूरत पड़ी तो अलग हो गए, राइट? सही है। थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, टाइम एक दूसरे को। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि खुदा न खास्ता सेपरेशन कर लें, मतलब ये कि थोड़ा उनको फ्लरिश करने दें। याद रखें कि जो आपके रिलेशनशिप रिश्ते में फ्लरिश कर रहा होता है पर्सनली ऑल्सो, वो उनका कम चांस है कि वो चीटिंग करें। अच्छा, राइट? ताहिरा आपके सामने डेफिनेटली बहुत सारे केसेस आते हैं, आपने चूंकि इस फील्ड से आपका ताल्लुक भी है, बहुत सारे केसेस डील भी करती हैं। आपने क्या स्टडी किया कि क्या कोई एज फैक्टर है जिसके हिसाब से हम लिमिट कर सके कि जी इस एज फैक्टर में आकर ये वाले ट्रेंड्स ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर वो जो एक क्राइसिस लाइफ का एक पीरियड आता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह लें या टेंशन, वो जो एक आपकी दिमाग जहनी होती है, वो एज के बाद आती है, मतलब आफ्टर 40s आती है वो। मेरे एक्सपीरियंस में अगेन बड़ा खतरनाक है, और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है कि जो खवातीन मेरे पास आती हैं जो ज़िंदगी से तंग होती, चीटिंग नहीं कह रही मैं, बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप्स, वो पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास 35-36 ईयर्स ओल्ड होती हैं, सही, लेट 30s और मिड 30s में होती हैं। अच्छा, और जो मर्द हजरात आते हैं वो 40s में आते हैं। देखिए चीटिंग इट्स कहते हैं, हम कहते हैं ना, एज के साथ हम इसका आपसे रीजन पूछेंगे कि एज किस तरह से ट्रिगर करती है इस मामले में, कि आप पार्टनर कोई और ढूंढ रहे होते हैं, दोस्त चाहिए होता है आपको। हमारे साथ एक कॉलर है, मोहम्मद कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अहमद कमाल। मेरा क्वेश्चन था जी ताहिरा मलिक साहिबा से जी कि चीटिंग, मैं राइटर भी हूँ, ठीक है, मेरी बुक भी है द एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि चीटिंग में जो ज्यादातर वो डॉक्टर साहब से पूछना था कि परसूट ऑफ वेल्थ, जो पैसा है, मनी, वो अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। तो बाद औक़ात ये एक आजकल जो सोशल मीडिया और जो हमारी वांट और डिजायर बढ़ गई हैं, तो ये पैसा की जो ख्वाहिश इंसान में बढ़ गई है, ये भी एक फैक्टर नहीं है चीटिंग में? ये ठीक है, मटेरियल फैक्टर, पैसा, उसकी ख्वाहिश। मैं अभी इसी पे आने लगी थी कि चीटिंग, हम अक्सर कहते हैं कि इंग्लिश में बताऊंगी कि चीटिंग इज़ अ लाउजी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ नीड, राइट? बिल्कुल ठीक है। किसी को धोखा देना एक गलत तरीका है अपनी नीड बताने का, ठीक है? तो वही जो इनके वाली बात है कि वो नीड कुछ भी हो सकती है। अक्सर हमने देखा है कि जिनके पास सडनली कोई जॉब चली जाती है, सडनली गुर्बत आ जाती है, सडनली उनका दिल करने लगता है अच्छी चीज़ों का। कुछ हजरात, मर्द हजरात के पास सडनली पैसे आ जाते हैं, ठीक है, हमने देखा है कि वो चीटिंग करने लगते हैं। अच्छा, एक और रीज़न जो मैं इनको मटीरियलिज्म के अलावा होता है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मेरा हक है कि मैं एंजॉय करूँ, सेल्फ पिटी। अक्सर ख़वातीन और मर्द उस टाइम चीटिंग की तरफ जाते हैं जब वो ये नोटिस करते हैं या दिल में सोचने लगते हैं कि मेरा हक है, एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहे, मेरा हक है कि मुझे फ़िलहाल पैसे मिलें। अच्छा, लेकिन मैं इनकी बात से थोड़ी वो हूँ कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक वजह से कोई भी खातून या मर्द कहीं
धोखा नहीं देता. देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रीजंस होते हैं. अच्छा, अब एक और हमने अपने मुआशरे में ये ट्रेंड देखा है कि पहले शादियां जल्दी हुआ करती थी, फिर शादियां लेट होने लग गई. जब शादियां लेट होने लग गई, खासतौर पे ख़वातीन ने जब ये शऊर उजागर किया अपने अंदर कि भाई हम पहले कुछ बन जाएं फिर शादियां करेंगे, तो अब शादियां ख़वातीन अनमैरिड हैं, मर्द हजरात क्योंकि या तो जल्दी शादी का उनकी तरफ होता है वो मैरिड हैं, तो इसलिए भी शायद चीटिंग का रुझान ज़्यादा है कि एक तरफ से वो अनमैरिड लड़की है या अनमैरिड जो खातून है वो किसी मैरिड आदमी के साथ उसका रिलेशन बन जाता है. हाँ, हो सकता है, बट कल्चरल है ना ज़्यादा. ठीक है, अब ये हर कल्चर में तो हम ये नहीं देखते शिफा. देयर इज ऑलवेज अ कल्चरल थिंग. कुछ कल्चर्स में ये बड़ी स्ट्रिक्ट, बहुत बुरा माना जाता है इसको, अनमैरिड और मैरिड. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ में सॉरी आप जी आप बताइए. एक और जो चीज़ है ना कि ये जो रिलेशनशिप जब हमारा एक खास हद तक पहुँच जाता है या उससे पहले भी, वो कहते हैं कि पहले जो काम हम पूरे गाँव से लिया करते थे कुछ 100 साल पहले, अब वो हम एक बंदे से चाहते हैं. राइट, तो उसमें फिजिकल टेंशन भी. The one person has to be your best friend. It has to be your romantic partner. He has to be your breadwinner. अच्छा, वो encourage भी करे, खातून के लिए भी ये है, breadwinner नहीं भी है, वो आपको encourage भी करे, वो आपको प्यार भी दे, वो आपको support भी दे, वो आपकी best friend भी है, नानी दादी का भी रोल वो करे. अच्छा तायरा, आपसे जो मैंने एक चीज़ पूछी वो ये पूछी कि क्योंकि अनमैरिड लड़की मिसाल के तौर पे 25 साल की है और जिस लड़के के साथ उसका रिलेशन है वो मैरिड है, वो अपनी लाइफ में 35 या 37 साल का लड़का है, उसने वो एक इनस्टेबल टाइम जहाँ पे उसको नौकरी की जदोजहद, पैसा बनाने की जदोजहद वो गुजार चुका है, वो कदर स्टेबल है, मैरिड लाइफ में भी उसके बच्चे होंगे, वो आराम से सेटल्ड है, बीवी उसको देखती होगी, तो वो बाहर क्यों निकलेगा? और ये खातून जो अनमैरिड है, शादी ये नहीं करना चाहती लेकिन मैरिड आदमी इनको पसंद है, या एक मैच्योर सोच वाला, क्योंकि वो आदमी शायद वो जो लो सेल्फ एस्टीम वाली आपने बात की कि वो खुद को शायद पोर्ट्रे इस तरह से करेगा कि आई एम वेरी स्टेबल, मैं मैच्योर भी हूँ, समझता हूँ हर चीज़, तो इन दोनों का मैच किस तरह से होगा? और लड़की के लिए ये कितना खतरनाक है जो अनमैरिड है, जाहिर है उसका आगे जाके या तो दिल टूटेगा या फिर किसी और का दिल टूटेगा तो इसका जुड़ेगा, वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है ये जो ट्रॉयका है. इट विल बी पेनफुल. देखिए, फॉर ऑल ऑफ देम आपने शुरू में बड़ा अच्छा कहा कि चीटिंग विल ऑलवेज बी पेनफुल. राइट, चीटिंग इज अ क्राइसिस, इट्स अ ट्रॉमा. हम अक्सर कहते हैं कि आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है चीटिंग के बाद, इफ यू आर बीइंग चीटेड ऑन. राइट, तो ये जो आप वाली बात है, ये तो कभी मैच, अगेन वो कहेंगे आप कौन होती हैं कहने वाली, बट ये बनता नहीं है. ये वाले मैच कभी स्टेबल होते नहीं है. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की जाए और बहुत ज़्यादा आपस में खुल के अपने अपने इश्यूज बताए जाएं, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो करने नहीं देता यूजुअली. आपको पता होगा कि डजंट एंड वेल यूजुअली, जो हमारे यहाँ मीडिया में भी चीज़ें आती रहती हैं. अच्छा, और फिर उसके साथ मैं ये भी सोचती हूँ कि जिन लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा हो जाता है कि भाई एक बीवी थी और दूसरी शादी भी हो गई, अब पहली बीवी भी बड़ी खुशहाल है और दूसरी बीवी भी बड़ी खुशहाल है, तो ये जो ट्रॉयका है ये कैसे वर्क करता है तीनों की ज़िंदगियों में? खुश है, और ये कौन से लोग होते हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, दुनिया में ये कौन सी किस्म की मखलूक है जो ये वो नीड्स ऐसी सब्र और तहम्मुल, वो अपनी नीड्स ऐसी बना लेते हैं ना. उनको मैंने बताया था ना कि चीटिंग क्या है, वो एक नीड की फुलफिलमेंट है, तो वो उनकी नीड ही है ना. हुआ ये कि रिसेंटली ये बड़ा जेंडर गैप जो उसमें कम हो गया ना, कि अब औरतों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, जैसे आप बता रही थी, औरतें मॉडर्न तरफ जा रही हैं, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक जेंडर डिवाइड जो है वो कम हो रहा है. उसके बाद भी ये इशू ज़्यादा बड़े हैं मेरा ख्याल, ज़्यादा सरफेस पे आए हैं. वाई? बिकॉज जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ चीटिंग की गई है वो ज़्यादा वोकल हो गई है इसके बारे में, एक्सेप्टेंस कम हो गई है. सही. अब आई एम नॉट सेइंग कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पहले ज़माने में एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी. मर्द माफ कर देते थोड़ा थे, मर्द के इधर उधर हो जाने से, और कहा जाता था कि ये तो मर्द करते हैं. अभी भी बहुत कल्चर्स में कहा जाता है, लेकिन अब ये कम हो गया. अब ये कम हो गया है, तो खवातीन ज़्यादा उठने लगी हैं अब कि ये अब ऐसा नहीं होगा. इसलिए वो जो आपने पहले केस बताया वो इट वोंट एंड वेल. ये बताइए कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी का इस चीटिंग के साथ, इसके साथ कितना ताल्लुक है आपकी स्टडी में? या बहुत ज़्यादा. यही कहने लगी थी कि जैसे एक वूंड है ना, चीटिंग एक तरीका है अपना जख्म दिखाने का. ठीक है, हमने जो एक चीटर है ना उसको जरा थोड़ा सा कंपैशन से देखना है थोड़ी देर के लिए. दिल नहीं करता बहुत लोगों का, ठीक है, हाँ. बट हमने थोड़ा उसको अगर हम कंपैशन से देखें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कोई दुखी, उनका दुख है, हाँ, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो दुख बता नहीं सकते. तो इमोशनली इन जो स्टेबल लोग नहीं होते उनका ज़्यादा ट्रेंड है चीटिंग की तरफ. ये भी देखा गया है कि जो इमोशनली लो IQ वाले लोग होते हैं, जिनको रिलेशनशिप चलाने नहीं आते, वो ज़्यादा चीटिंग की तरफ जाते हैं. अक्सर इमोशनल हाई IQ, EQ जो होता है ना, इमोशनल क्वेश्चन जो आपका इमोशनल IQ है, जिसमें आपको पता होता है रिलेशन कैसे चलाने हैं, अगले बंदे की नीड कैसे जाननी है, अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की, उसकी नीड पूरी कैसे करनी है, इमोशनल नीड, उन कपल्स में इनफिडेलिटी कम है. बट अगर एक पार्टनर इमोशनली लो IQ है तो काफ़ी चांसेस हैं कि उन कपल्स में इनफिडेलिटी पाई जाएगी, कोई एक करेगा. नंबर 2, जिन कपल्स में क्रिटिसिज्म और स्टोन वॉलिंग ज़्यादा होती है. अच्छा, क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट से कहते हैं ना, एक को कम समझना दूसरे को. कंटेम्प्ट एक चीज़ है ना कि ये हमेशा ही तुम गद्दी यहाँ रख देते हो, ये ग्लास तुम उठा नहीं सकते, एज अपोज टू ग्लास तो उठा लो.
हाँ राइट, मतलब वो ताना ना हो, ताना अब वो हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है, वाइफ की तरफ से भी। नंबर 1 एंड स्टोन वॉलिंग होता है जी, जब मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आपने मुझे शट डाउन, बैरियर, बस उसके बाद आपके फोन बंद हो गए, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। अक्सर लोग 5 मिनट 10 मिनट के लिए ब्लॉक अनब्लॉक, साथ एक घर में रह रहे हैं और नंबर ब्लॉक कर दिया है। अच्छा मैंने ये देखा है मर्द हजरात में ज़्यादा है माजत के साथ, लेकिन वो घर से निकल गए और फिर ट्रेसेबल नहीं है। ये जब एक पैटर्न बन जाता है, अक्सर मैं क्लाइंट से पूछती हूँ ना, लोग कहते हैं जी मेरे हस्बैंड ने चीटिंग की, तो मैं कहती हूँ हाउ ऑफन, इज इट वंस और ट्वाइस और ही इज़ अ सीरियल चीटर। तो ये जो भी पैटर्न है रिलेशनशिप का, स्टोन वॉलिंग का, चीटिंग का, ये जब पैटर्न बन जाते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि अब ये रिलेशनशिप वापस शायद ना आ सके या ये चीटिंग शायद ना रुक सके, अगर जब तक आप ये पैटर्न्स नहीं रोकते। अच्छा, अब रोकने का भी तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग तो कन्फ्रंट करते हैं खवातीन कि भाई तुम ये कर रहे हो और मुझे बताओ। बिल्कुल। अब जब मुझसे 1-2 लोगों ने ये बात की, खवातीन ने की, तो मैंने उनसे 2 सवाल पूछे। मैंने कहा अगर तो आप कन्फ्रंट कर रही हैं, आपको पता है कंफर्म है, और वो आगे से या तो इनकार करेगा या वो इकरार कर देगा कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, अगर तो वो कह देगा कि मैं कर रहा हूँ तो बेसिकली उसने ऐलान कर दिया, तो आप क्या करेंगी? इफ यू आर रेडी कि आप कोई साइड पे होना चाह रही हैं या कुछ, या तो आपने अगर माइंड बनाया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर आपने रहना भी है उसी के साथ और आपने छोड़ना भी नहीं है, तो फिर तो आप बेसिकली उसको ये बता रही हैं कि हाँ भाई मुझे पता है और उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तो अब तुम करो। उसको शेम भी दे रही हैं आप, याद रखें कि अगर आप उसको शेम देंगी ना, अगेन जब हम क्योर पे आते हैं, अगर हम क्योर पे आ जाएंगे कैसे ये रिलेशनशिप वापस आ सकते हैं, उससे पहले मैं ये नाज़रीन को बताती चलूँ कि इनफिडेलिटी या चीटिंग चाहे औरत ने की है या मर्द ने की है, वी कैन ऑलवेज कम बैक, वी कैन ऑलवेज कम बैक फ्रॉम दैट। हाँ, चीटिंग डज नॉट मीन द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, चीटिंग डज नॉट मीन कि आप दोबारा खूबसूरत एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो एतबार बहाल हो जाता है, क्या वापस आता है, वो एतबार आता है। अच्छा कैसे आता है? नंबर 1, एक तो ये कि आपके अंदर एक डिज़ायर हो, चाहे मर्द है या औरत हैं, टू कम बैक, नॉट बिकॉज यू नीड मी, नॉट बिकॉज आई हैव किड्स विद यू, नॉट बिकॉज हमने घर इकट्ठा लिया था एक नाम पे, ना हो, बट बिकॉज आई चूज टू रिग्रेट इट एंड आई चूज टू कम बैक। नंबर 1 चॉइस, राइट। नंबर 2, एक खातून जैसे आपने कहा वो कन्फ्रंट करनी है, उनको बजाय कन्फ्रंटेशन के ये पूछना चाहिए, डू यू वांट टू कम बैक, आर यू रिग्रेटिंग इट, राइट, आर यू बैक। मतलब मुझे सिर्फ इशू उससे ये था कि वो जब पूछेंगी उसे तो वो कहती हैं कि मैं तो रहूंगी, मेरे बच्चे हैं और मैं, तो मैंने कहा फिर तो आप उसको एक तरह से ये लेवरेज दे रही हैं कि भाई देखो मुझे पता भी चल गया और मैं इतनी बेबस हूँ कि मैं तुम्हारे घर बैठी हुई हूँ, मैं जा भी नहीं सकती, तो उसको बेसिकली ये एज मिल गया कि अब तो मैं जो भी करूँ मुझे ये पता चल गया कि ये औरत कहीं नहीं जा रही, कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखा रही मुझे दरअसल ये प्रॉब्लम, और आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखा रही ना, जिस चीज़ से कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे तो वो नहीं रुकेगा ना फिर। अच्छा नंबर 2, आप उसके बाद मर्द को या औरत को शेम ना दें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेम एंड गिल्ट। ठीक है, शेम वो कैसे समझाएंगे? शेम का मतलब ये है कि तुम एक बुरे आदमी हो या तुम एक बुरी औरत हो। अब औरत खुदा ना खास्ता कर ले फिर तो वो जी उसको तो कहीं मार, वो तुम बर्दाश्त के काबिल ही नहीं होता, तो बिल्कुल ही। तो ये मैं उन मर्द हजरात के लिए बात कर रही हूँ। शेम का मतलब है तुम एक बुरी औरत हो, तुम एक बुरा मर्द हो। गिल्ट का मतलब है तुम एक अच्छे इंसान हो बट एक गलती हो गई। सही है, एक गलती हो गई, राइट। तो जब इंसान गिल्ट के से आपके पास आता है वापस, आप उसको एक्सेप्ट करें अगर आपने रिश्ता चलाना है। हाँ सही है। हाउ ऑफन इट इज पॉसिबल कि जब चीट या धोखा है और वो किसी नीड की एक्सप्रेशन का एक जरिया है, तो फिर डेफिनेटली उसको तो ये शुरू में तो एहसास नहीं होगा वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि वो तो या कर रही है जिस भी केस में है। तो फिर गिल्ट या फिर ये रिग्रेट वाला फैक्टर कितना इसमें इंप्लीमेंट होता है जब आपको ये ही नहीं एहसास कि ये जो चीज़ है जो काम मैं कर रहा हूँ वो गलत है? अच्छा नहीं साथ ये तो मुझे लगता है एहसास तो पहले दिन से होता है। एहसास अनलेस यू आर अ नार्सिसिस्टिक, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आपको, इसमें होता है ना कि वो भी है। अच्छा वो भी बहुत ज़्यादा है, आपने अच्छी बात की कि वो भी बहुत है हमारे माशरे में। व्हेन यू आर सो फुल सेल्फ एब्जॉर्ब, आपको अपना आप इतना पसंद है और बचपन से आपको ये बताया गया है, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा बट मर्द हजरात को बचपन से हम रिग्रेट करते करते कह रहे हैं, मुझे तो बचपन से बताया जाता है कि बेटा तुम ठीक हो। बस औरत को कहा जाता है ना ये करो वो करो, वो तो भाई है, वो भाई है उसको करने दो, तुम मत करो। मर्द को कहते हैं बस तुम पैदा हो गए हो ना, बहुत अच्छा, बस ठीक है, ये डिग्निटी है। और ऐसा तो चूंकि वो इसमें बड़े होते हैं, कुछ मर्द हजरात ज्यादा इसमें बड़े होते हैं, तो वो गलत नहीं समझते किसी चीज को। एक तो ये हो गया। अच्छा हैविंग सेड दैट, मोस्टली पीपल फील अ नीड एंड पीपल नो कि हम ये नीड हम गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम कौन सी नीड फुलफिल कर रहे हैं साथ, बट फर्स्ट डे उनको एहसास होता है। जितने मेरे कपल्स देखे जो उनको पता होता है हम गलत कर रहे हैं। हाँ, ये तो आपके ज़मीर की एक आवाज़ होती है, वो आती है। अगर आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने आपको वापस अपने साथ रखना है और आपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है। अच्छा कई दफ़ा चीटिंग के बाद रिलेशनशिप मजीद बेहतर हुए हैं लोगों के, बिकॉज चीटिंग वॉज अ वेकअप कॉल आपके डेड रिलेशनशिप के लिए। देयर वॉज अ वेकअप कॉल कि देयर आर मेनी थिंग्स अनसेड। तो वो जो डेड रिलेशन हो जाता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, शादी के बाद वो हो जाता है, उसका स्पार्क रिवाइव कैसे करें?
اچھا ضروری نہیں ہے, ہو جاتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کا ویسے نہیں بھی ہوتا, ریئر کپلز ہیں, میں نے جانتی ہوں 1-2 کپلز کو, لیکن واقعی ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے 40 سال ہو گئے شادی کو. میری ٹیچر ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں, امریکہ میں ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہیں, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان شاید زندگی میں 2 یا 3 دفعہ شادی یا محبت کرتا ہے. تو میں نے 30 سالوں میں وہ 2-3 شادیاں یا محبت ایک ہی بندے سے کی. رائٹ, صحیح. انہوں نے کہا ہر کچھ سال بعد, ہر 10 سال بعد آپ کا ریلیشن شپ ٹرن کرتا ہے, آپ ایک نئے انسان بنتے ہیں, کیونکہ 10 سال میں آپ کی بھی تو گروتھ ہو رہی ہے نا ایز اے پرسن, آپ بدل رہے ہیں. رائٹ, اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ اینڈ یو ہیو اے آنیسٹ کنورسیشن کہ آئی ایم چینجنگ, ڈو یو ایکسیپٹ می, یا یو آر چینجنگ, آئی ایکسیپٹ یو. تو یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ 2-3-4 کے بعد ہو جائے. ہاں کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے, خالہ کو دیکھا ہوتا ہے, کزن کو دیکھا ہوتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح ڈیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو ریوائیو کرنے کا ایک طریقہ ہے شفا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیزائر یا اٹریکشن آ جائے گی, صبح اٹھیں گے اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے واہ. رائٹ, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے صبح اٹھنا ہے, الارم لگانا ہے کہ اب میں نے اس کو دیکھ کے واہ کہنا ہے. رائٹ, اچھا there's a difference. It's not a natural phenomena after some time. I agree مطلب with you. effort put کرنی ہے. Yes, but you have to decide sometimes every day. اب لوگ کہیں گے بڑا ہارڈ ورک بتا رہی ہیں, بٹ اگر آپ نے خوش رہنا ہے, آپ کا واحد ایک ریلیشن شپ ہے جو آپ کو ریئل خوشی دے سکتا ہے. ہمارے مذہب میں بھی ہے ہر جگہ کہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ از اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. تو صبح اٹھنا ہے اور صبح سوچنا ہے کہ آج میں نے اس سے اٹریکٹ ہونا ہے. صحیح ہے. So یا اس کے لیے میں نے پھول لے کے آنا ہے. Love is not a noun that will come to you. Love is a verb that you have to do. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ورب ہے, اس کو کرنا ہے آپ نے. وہ جو ہو جاتے والا پیار ہے وہ ذرا خطرناک ہی ثابت ہوتا ہے. یہ پیار جو آپ کریں گے وہ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دے گا. لانگ لاسٹنگ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. اس شارٹ ٹرم کے چیٹنگ کے آپ کو مے بی ایک ہائی ہے, ٹھیک ہے, بٹ یہ لانگ ٹرم میں آپ کو آپ کے ہارٹ ہیلتھ, آپ کے باقی بیماریاں, آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشو, یہ سب اپنے گھر میں خوشی جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے اس کو کرنے سے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے طاہرہ, آپ نے وقت نکالا اور بڑی اہم باتیں تھیں. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, جس کو سمجھ آ جائے تو اس کو سمجھ آ جائے, وہ اپنے راستے جو ہے وہ مطلب ٹھیک کر لیں, مینڈ یور ویز بوائز اینڈ گرلز. اچھا جاتے جاتے اب آپ کو میں ایک اور بات کہہ دوں کہ میاں اور بیوی کا یہ وہ رشتہ ہے کہ جو آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے, آپ کنیکٹڈ نہیں ہے ایک دوسرے سے, اور نہ ہی آپ لوگوں پر کوئی کسی قسم کی قدغن ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے رہنا ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کی بھی اجازت دین دیتا ہے کہ آپ لوگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ چوز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا وہ بڑا کمال کرتے ہیں. اور زندگی میں ان کپلز کو دیکھیں کہ جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر ایک شخص نے کوئی نہ کوئی ایسا کپل اپنی لائف میں دیکھا ہوتا ہے جس کو سوچ کے, جس کو دیکھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ آئی وش کہ میرا ہسبینڈ یا میری وائف ایسی ہوں اور ان جیسا کپل میں بھی اس کے ساتھ بناؤں. تو ایسے ایگزامپلز کو اپنے سامنے رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے شخص کی ایگزامپل کو سامنے رکھ رہے ہیں جس میں اپنے بہت زیادہ فلاز ہوں اور وہ اپنی غلطی کا ملبہ اپنے پارٹنر پہ ڈال رہا ہو.